beginning with the show for today. So we all know life is all about learning new things and exploring the world. But as soon as we get busy in our lives, we stop adoring how beautiful our life is. Life is like the sun with an opportunity to begin every day with a new beginnings. जैसे कि sun जब उगता है वैसे एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नई दिन के साथ शुरुआत होती है, एक नए तरीके से दिन को शुरुआत करने की वो होती है हमारे अंदर। वैसे ही कुछ लाइफ है, हर एक दिन एक नई शुरुआत नई तरीके से स्टार्ट करने की हम सोचते हैं। भले लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, पर इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम जीना बंद कर दें। Having said that, it has been quoted somewhere that life is what happens, जो हमने सब में सुना हुआ है, life is what happens when you are busy making other plans. So plan the way in which you can live life to the fullest. So to unravel all our life and to basically how we can live life to the fullest and how we can live life in a very new way, we have two psychologists with us today. One is Pranami Bordoloi and one is Kashika Gulati. So a bit about Pranami Bordoloi. She is a licensed clinical psychologist who is committed to promoting emotional and behavioral growth by providing a soft space and building a support system. She has a passion for research work and believes in a holistic approach. Ever since she was a little girl, dance has always been an important role of her life, a part of her life when it comes to expressing herself. She believes that hope and belief is all it takes to make a difference. And coming to Kashika Gulati, she is a psychology and education enthusiast who loves to play football. She expresses herself through singing and finding solace in nature. She tells her that she believes she's an old soul who strives for authentic connection. She aims to build genuine connection with her clients and facilitate their growth. And she believes in feeling and healing together. So without further delay, I would like to invite both of them. And those are very pretty young psychologists with us. So over to you, Pranami and Kashika. Thank you so much. You can unmute yourself. Yeah, it's unmuted. So thank you so much, Sanjana. Hi, good evening and namaste to everyone. I am Pranami Bordoloi and like Sanjana said, I'm a clinical psychologist. यहाँ पे जैसे हम लोग आज पहले तो थैंक यू सो मच कि आप सभी ने वेबिनार ज्वाइन किया। हम लोग को बहुत अच्छा लगा एंड वी आर रियली एक्साइटेड फॉर द वेबिनार। आज की जो टॉपिक है अनरैवलिंग योर लाइफ, इसमें हम जो बातें करेंगे, कुछ एक्टिविटीज करेंगे, कुछ नए चीजें सीखेंगे। इन सब चीजों के जाने से पहले कशिका, व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? अच्छा, नमस्ते सबको। सब कैसे हैं? अनम्यूट करके बता सकते हैं। बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। आप बताइए आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे हैं। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। वेरी प्लेजेंट एंड वेरी स्वीट। हम तो सबसे अच्छे हैं। वेरी गुड। आप सबकी एनर्जी देखकर हम में इतनी एनर्जी आ गई है, मन कर रहा है आप सबके साथ अच्छे से एक्टिविटीज करने का। बहुत मजा आएगा। Your program is good always. हाँ जी, थैंक यू सो मच। तो मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ कलाइडोस्कोप से। मैं एक बारी हमारा स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। आप प्लीज बता देना आपको दिख रही है तो। आप सबको हमारी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं अनरैवलिंग योर लाइफ। तो आप सब मुझे बता सकते हैं कि इस टॉपिक को सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? आज हम किस चीज के बारे में बात करें? कोई भी बता सकते हैं। जिंदगी, हाँ मैं बताता हूँ। जिंदगी जीने को दी है एक दफा, इसको लिव योर लाइफ। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। क्वालिटी ऑफ लाइफ, ओके। और अपना पुरानी बातें छोड़ के नई बातों को अपनाओ और खुश रहो और खुश रखो सबको। अच्छा, खुश रहो और खुश रखो। अच्छा, मतलब हैप्पीनेस के बारे में ये तुम लोग बताओगे। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। हाउ टू लिव लाइफ।
No, how life reveals itself. Every moment, every stage of your life. लाइफ से अपना स्ट्रेस और टेंशन खत्म करने के लिए। हाँ जी। Chemistry and mystery of life. Oh, that's so creative, ma'am. Thank you so much for sharing. That's very creative of you. और भी कोई बताना चाहेगा कि हम क्या-क्या themes discuss करेंगे? Enjoying the present moment. Enjoy the present moment. बहुत अच्छे ख्याल आते हैं आप सबके, तो ये तो मैं आप सबको कहूंगी। Forget the past. Forget the past. And concentrate on the present only. अच्छा, focus on the present as it comes. Forget about the past. Life is very short. Concentrate upon the present. Life is very short. No life, no future. Future के बारे में नहीं सोचना है, past के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ present के बारे में सोचना है। अच्छा। That's all. पूरा सोशलाइज करना है। You should fulfill all your desires in this life. अपने आप को अनरिवील कर दो, जो दिल में छुपा बाहर निकाल के छाप मारो। इतना अच्छा लग रहा है आप सबकी एक्साइटमेंट देखकर। रंग बिरंगी। जो हो गया वो हो गया, जो नहीं होना उसको खुशियां मनाओ और अच्छे से देखो। Present is the real gift of life. तो आप सबके एक्साइटमेंट देखकर मैं और प्रणामी इतने एक्साइटेड हो गए हैं ना, अभी ऐसा लग रहा है जो आपने बोला उसी के बारे में बात करें। तो एक काम करते हैं, आज वाले टॉपिक्स देखते हैं और फिर देखते हैं किस किसने सही बताया। पर उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कलाइडोस्कोप क्या है। तो कलाइडोस्कोप बेसिकली एक मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अडल्ट एंड फैमिली केयर हो गया, एक चाइल्ड एंड एडोलेसेंट केयर हो गया, सीनियर केयर और प्रोफेशनल वेलबींग कॉर्पोरेट्स में। तो हम काउंसलिंग सेशंस करते हैं, हम वर्कशॉप्स देते हैं, वेबिनार्स देते हैं, और हमारी एक टीम है पूरी साइकोलॉजिस्ट की जो अलग अलग एरियाज में स्पेशलाइज करती है, जैसे कि एक्सप्रेसिव आर्ट्स हो गया, ग्राफोलॉजी, कुछ लोग हैंड राइटिंग एनालिसिस भी करते हैं, हमारे पास साइकेट्रिस्ट भी हैं। तो ये थोड़ा सा था हमारे बारे में। पर इस टॉपिक के साथ आगे बढ़ने से पहले, वैसे तो आप सबकी एनर्जी को देखकर मैं ऑलरेडी जानती हूँ कि हम ये बहुत इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे, तो किसी को भी हिचकिचाना नहीं है कुछ भी बोलने से पहले। तो हम ट्राई करेंगे ये जितना इंटरैक्टिव हो सकता है, जितना हम एंजॉय कर सकते हैं इन एक्टिविटीज से उतना करें। सब एक्साइटेड है तो एक थम्स अप दिखाएंगे। थैंक यू, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। तो आज के वेबिनार में हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। एक है हमारे सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स। आज तक हमने जो भी कुछ किया, किसी ने अभी बोला भी था ना कि पास्ट के बारे में ना सोचकर और प्रेजेंट के बारे में सोचे, तो हम पास्ट से प्रेजेंट में कैसे आएंगे और हम अपने प्रेजेंट को कितना अच्छा बना सकते हैं, अपनी अचीवमेंट्स देखकर, अपने चैलेंजेस को पीछे देखकर और आज देखकर हम कितना आगे आए हैं, और उसी से हम कितना उभर पाए, हम कितना रेजिलिएंट हो पाए, हम कितना बाउंस बैक कर पाए, वो भी देखेंगे हम। और हर चीज में आता है सेल्फ केयर। बहुत सुना होगा ना सबने ये टर्म सेल्फ केयर। अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को जितना अच्छा करके रख, जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो बनाओ। तो आज हम इन 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। और अभी सुनने में शायद बोरिंग भी लग रहा होगा, पर हम इसको बोरिंग नहीं बनाएंगे, ये प्रॉमिस है हमारा। तो इसीलिए हमारी जो पहली एक्टिविटी होगी ना, उसमें हम सब गाना गाएंगे। पर गाना क्या गाना है वो मैं आपको बताऊंगी। हमें कोई ऐसा गाना गाना है जिससे कि हम हमारी लाइफ स्टोरी, मतलब जो भी हमें गाना हमारी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मुझे बताना हो मेरी जिंदगी कैसी है, तो मैं गाऊंगी अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी। बहुत बढ़िया, लवली, सकीना। थैंक यू, गाया बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। तो अब आपकी बारी है, आप कौन से गाने से सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं? हाँ, मैं सुना रहा हूँ। हाँ जी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
खूब बढ़िया विजय जी, वेरी नाइस। थैंक यू, आपने कितना सुंदर गाया सर, थैंक यू सो मच। और कौन गाएगा अब? गाऊंगी। हाँ जी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, उड़ले 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 उड़ले। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और कौन अपनी जिंदगी का बताएगा गाने के? हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवान कर, इंसान के लिए गुजराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। थैंक यू सर। मैं सुना रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। हम गाएंगे क्या? हम गाएंगे। जिंदगी ख्वाब है, हाँ हमें भी पता, पर हमें जिंदगी से बहुत प्यार था, सुख भी थे दुख भी थे, दिल को घेरे हुए, चाहे जैसा हरंगी संसार था। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जब हमने ये एक्टिविटी रखी थी ना, हमें पता नहीं था इतना सुंदर गाते होंगे सब। यहाँ पे सारे आर्टिस्ट हैं हमारे ग्रुप में। सब लव यू करती है जिसे हर वक्त हंस के उस पार का प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होएगा। ये कोई बात नहीं। अब मैं गा रही हूँ, मैं गाऊं। गाना पड़ेगा। अब पूरा सेशन इसी में निकल जाएगा, तुम लोग पर मैं तो गाऊंगी मोना जी एक। बिल्कुल बिल्कुल गाइए मैम। मेरा है, गाने को मिलेगा तो गाएंगे। तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, मैंने कहा मैं हूँ आजाद। बढ़िया गोविंद जी, थैंक यू सो मच। और कौन गाएगा? हम गाएंगे। हाँ जी हाँ गाइए। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप। बहुत बढ़िया, शुक्रिया मोना जी। बहुत बढ़िया मोना जी, बहुत बढ़िया। लव यू जिंदगी। और मैं भी लास्ट करूंगी इसको। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, ना जीना यहाँ आसान, ना मरना यहाँ मुश्किल, जिंदगी क्या है। बहुत अच्छा लगा आप सबके गाने सुन के, और इतने सुंदर गाने गाए सबने, और बाकी सबको भी चांस मिलेगा कुछ ना कुछ बोलने का, करने का। पर इससे पहले कि हम इस एक्टिविटी को और आगे बढ़ाएं, हम अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, जिसके लिए आप सबको एक पेपर और पेन चाहिए होगा। सबके पास है तो एक थम्स अप दिखाएं। सबको बताया था ना अभी? वेरी गुड, सब बहुत ही प्रिपेयर्ड आए हैं, तो बहुत खुशी की बात है। तो अभी क्या करना है ना, हमें हमारी जिंदगी में अभी तक जो भी बहुत अच्छी चीजें और जो भी चैलेंजिंग चीजें, जो भी डिफिकल्ट वाली चीजें रही हैं, हमें उनको याद करना है। पैदा होने के बाद से आज तक की जिंदगी, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा मैप दिख रहा होगा ना आपको, मैप और जर्नी ऑफ लाइफ, में इसी तरीके का एक मैप बनाना है अपनी जिंदगी का, जिसमें कि बर्थ से लेकर प्रेजेंट तक की एक लाइन बना के उसके बीच में हमें बस इवेंट्स लिखने हैं सिग्निफिकेंट। जैसे कि मेरे लिए एक अचीवमेंट हो सकती है
कि मैंने अपने कॉलेज की फुटबॉल टीम ज्वाइन करी, जो कि मेरा हमेशा से मन था। या फिर मेरे लिए अचीवमेंट हो सकती है कि मैंने 12th-11th क्लास में एक सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लिया और मैं उसमें फर्स्ट आई, है ना। और मेरे लिए चैलेंज हो सकता है कि मेरे से आज सुबह एकदम उठा नहीं गया, फिर भी मैं उठ के किसी तरीके से काम के लिए आई। तो अचीवमेंट्स और चैलेंजेस को हमें ऐसे नहीं देखना जो चीजें टिपिकली अच्छी और बुरी मानी जाती है। जो मेरे लिए छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज जो अच्छी या बुरी है, मैं उनको भी डाल सकती हूँ। जैसे अगर 4 दिन पहले मेरा इतना मूड खराब था और मैं चाहे कभी भी किसी को फोन नहीं करती, मेरा मूड खराब होता है, पर मैंने उस दिन किया, मैंने उस दिन अपनी दोस्त को फोन किया और उससे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं तो कभी भी किसी को फोन नहीं करती, पर मैंने किया। तो ये छोटी छोटी चीजें और बड़ी बड़ी चीजें जो भी हमें लगती हैं, हमें इस जर्नी में डालनी है, ये देखने के लिए कि हमारी जिंदगी में कितनी अच्छी और कितनी बुरी चीजें रही। क्या आप सबको समझ आई ये एक्टिविटी? अगर आई तो आप थम्स अप दे सकते हैं, नहीं तो माइक पे आके भी बोल सकते हैं। यस 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 ओके। तो फिर बस या तो फिर आप ये भी कर सकते हो, या फिर आपके दिमाग में जो भी चीज आती है अचीवमेंट और चैलेंजेस सुनकर, वो आप चीज ड्रॉ भी कर सकते हैं। एक अचीवमेंट वाली बोले? हाँ जी। अच्छा, मैं बोलना चाहती हूँ कि आई वाज मैंने in Mahila Samiti I was secretary for a long time. Wow. So one function was taking place. So that time a worker came to me and said कि madam, I got this one, a very heavy chain. Heavy chain, he gave it to me and he said कि वो कारपेट पुराना का वो एक फंक्शन खत्म होने के बाद नया फिर वो रोल करके रख देते हैं ना, फिर दोबारा उसको बिछाते हैं। तो जब नया बिछा रहे थे, so that person he found this chain, माने उससे पहले कभी फंक्शन हुआ होगा और कोई भी उसमें वो गिर गया होगा, and he got it that. Wow. And he gave it to me as I was the secretary. He gave it to me, and then I thought now I cannot find out the person किसका वो है। मिथुन चक्रवर्ती का एक थैलासेमिया का एक ग्रुप है। हाँ, तो every year from our that Mahila Samiti we used to contribute a certain amount of money for that. So that chain I had given, it was quite costly. So I had given that golden chain to that Mithun Chakrabarti ka jo wo tha, in that I had given, and it was liked by everyone, and particularly the person who had handed it over to me, he, in spite of he is such a poor person, he gave it to me. So we must, it's a commendable for him. That's wonderful, ma'am. It's so great to know that even. Thank you so much for sharing. तो अभी एक काम करते हैं हम, मैं आपको सबको 2 से 3 मिनट दूंगी ये लाइन ड्रॉ करके अपने अचीवमेंट्स और चैलेंजेस के लिए, और उसके बाद फिर हम शेयर भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको अभी से 2 से 3 मिनट मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। आपने ये कहना है कि टाइम इज ओवर, नहीं तो यहाँ पे बहुत लोगों के पास। बिल्कुल सर। ठीक है सर। हाँ जी। हाँ, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ जी सर। I started my education in a convent school, and cricket was passion, and I was an opener batsman in my school. We won the tournament, final tournament. In college, decided to join sale profession, successful in sale, and became North India manager. Before retirement, I went to USA, worked there, and got appreciation. Also, I got a passion for social work. I am also a director in an organization called Amrit Foundation, which serves the need of poor people. Thank you. Thank you so much for sharing, sir. बाकी सब तब तक लिख कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर शो किया हुआ है मैप में। हाँ, मैंने लिख के किया मैडम। अच्छा अच्छा। ऊपर ही है ना, लो कुछ नहीं।
This is what this is long. This thing. It is written. I should speak now. Yes, sure. I am S.C. Puri. I graduated from Hansraj College, Delhi University, the known best college at that particular time for the mathematics honors. Now also it is very good college. And during the college time, I joined the NCC. And in the NCC, you know, they generally, you might have heard about NCC C certificate. But I was the holder of a certificate above that, that is the NCC D certificate. And having got the D certificate, that time was, you know, presented to me by Mrs. Indira Gandhi when she visited our college. And after that, you know, I was given a selection in the Indian Army. I remained as a colonel for about 30 years. And thereafter, I joined in the civil after my retirement in the DRDO, again, one of the most reputed science lab there, and worked for about 7 years. And after that, you know, I joined as an administrator, you know, in a Delhi schools, that is the Bal Bharti Public School. I feel that right from the day my birth was there until now, I have a comfortable life and I'm still feeling very happy and enjoying. Thank you so much. Thank you for sharing, sir. Achievements के साथ साथ में सब challenges भी बता सकते हैं. कहने को बहुत कुछ था अगर कहने पे आते, दुनिया की इनायत है कि हम कुछ नहीं कहते. वाह वाह वाह. हाँ जी, मैं बोलना चाहता हूँ. हेलो. हाँ जी. हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि I belong to a very low middle class family because we shifted from Peshawar to Delhi in 1947. So at that time, we didn't know what to do. But after a lot of struggle, anyway, I passed my higher secondary at that level and never didn't know what to do after that. Because my parents were very poor, no money to spend on higher education. So I wanted to do civil or electrical or mechanical. At that time, only 3 passions were there. But because of my this thinking that I don't want to spend more, I appeared in a test in Delhi Polytechnic at that time and Delhi College of Engineering. That was school of there it was a school of architecture associated along with that. So I appeared in the test. It was very hard and tough test with interview, with written test. I got selected there without knowing what architecture is. But because I got a seat in Delhi only, so I could, save the money of my parents, I joined it. Thereafter, when I passed it, I had a lot of trouble because I was not a very successful architect at that time. Though I worked in a government job in a NDMC, that was good. But thereafter, I went to Iran from 1974 to 79. That was the best period in my life, which I still remember. Wow. During Shah's regime. So this is my experience that even without knowing what it is, but now at that time I used to say, I am a son of a poor father. But now I say, I am father of a rich son. That's so wonderful. Thank you. Thank you. Thank you, sir. It's really inspiring. Thank you. Is there anyone else who would also like to share about their achievements and challenges? ओके सो आप सब ये बता सकते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज करते हुए रिफ्लेक्ट करते हुए अपनी अचीवमेंट्स चैलेंजेस अपनी सिग्निफिकेंट जो भी कुछ आपकी जिंदगी में आपको फील कैसा होगा? Can I share? Sure. Please, ma'am. Can I share? Yes, ma'am. Sure. Okay, thank you. Yeah, my memory goes to when I was in class 2. And I was a very good runner
So there was one boy who used to always come first, and I used to come second. And when in the final sports day happened, I came first. So I still remember that when I was in class 2. So that was a big thing. Then in 11th standard, I became the school prefect and a sports captain. So that was quite a privilege for me to do that. And then eventually I went down to LSR College and joined basketball team. And then got married very early at 18 and a half. And all my education went for a toss. But then since I was really interested, I learned French. I did my B.Ed. Then I went on to do journalism when I was 52 years old. And I have been doing freelancing since then, since 15 years. And then I had not been abroad. So my first trip abroad was really great. I felt very nice going there with my daughter and family. And I have recently joined club management committee of our club here in Noida. So that I feel very nice because I was very hesitant earlier. So I managed to get elected. And my challenges are that staying alone, but I need to be staying alone in peace and happiness, so that I try my best to do. And that is what it is. Thank you. Thank you so much for sharing, ma'am. Thank you. Thank you. तो अभी हम सबने अपने लाइफ के बारे में बात करी, काफी लोगों ने करी. आई एम सॉरी सब लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, इसीलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़कर अब हम डिस्कस करेंगे अब प्रणामी आप सबके साथ डिस्कस करेगी आगे का कि हमने चैलेंजेस तो इतने फेस करे पर उनको ओवरकम कर लिया. थैंक यू सो मच कशिका. सो जैसे कि आप लोगों ने इतनी ब्यूटीफुली अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर की, जिसमें आप लोगों ने ये भी बताया कि आप लोगों को जो भी कुछ भी अचीव हुआ, बहुत अचीवमेंट्स वगैरह आपको आया, तो उन चीजों को आपने सेलिब्रेट कैसे किया, और अगर ऐसे मान लीजिए कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आपको आ गया, तो जैसे गुप्ता जी ने शेयर किया था कि उन्होंने वैसी सिचुएशन को कैसे डील किया, फिर कैसे हैंडल किया, है ना. तो क्या कोई और इसके बारे में शेयर करना चाहेंगे कि डिफिकल्ट सिचुएशंस जब आ जाते हैं तो कैसे हम उन चैलेंजेस के साथ डील कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकता है आप लोग के हिसाब से जो हमें डिफिकल्ट सिचुएशंस पे हेल्प कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर मैं शेयर कर सकती हूँ. ओके. जब मेरी जॉब शुरू हुई थी और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, इससे पहले कॉलेज लाइफ थी और पढ़े, थोड़ा सा खेल लिया और उसके बाद ट्रैवल करके घर आना, और बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता था. पर जैसे ही जॉब शुरू करी तब से ऐसे लगने लगा कि ना मैं किसी से बात कर पा रही हूँ, सुबह सुबह उठ के और रात को इतना लेट घर आना, कोई लाइफ नहीं है, कुछ नहीं है. तब मैंने क्या किया था कि मैंने अपने दोस्तों से बात करनी शुरू करी थी. तो जब मैंने उनसे बात करनी शुरू करी, उनके एक्सपीरियंसेस सुने और उनसे सुना कि उन्होंने किस तरीके से इन चीजों के साथ डील किया, तब मुझे थोड़ा सा पता चला कि अच्छा इन तरीकों से ऑफिस के बाद इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करके मैं फिर भी ठीक कर सकती हूँ. तो मैंने इस तरीके से अपनी मोनोटनी ब्रेक कर दी जॉब की. तो उसी तरह से आप लोगों का कोई भी चैलेंज आपने किस तरीके से ओवरकम किया, आप वो शेयर कर सकते. कोई भी शेयर कर सकते हैं. हाँ, जैसे कि मैंने बताया ना कि मैंने सेल्स प्रोफेशन ज्वाइन किया. हाँ जी. तो जो ट्रेनर था ना, हाँ जी, वो बहुत जल्दी जल्दी बोलता था, तो थोड़ा सा लगा कि मैं कैसे बोलूंगा. तो 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद मैंने इसको चैलेंज ले लिया कि मैं भी इसकी तरह बोलूंगा. तो उसको कहते हैं डिटेलिंग. तो मेरे को गला अब आप डॉक्टर के सामने करनी होती थी. तो जब उसने मेरे को इंडिपेंडेंट डिटेलिंग दिया, तो बीइंग ए कॉन्वेंट बैकग्राउंड मेरी इंग्लिश अच्छी थी, तो मैं उसको बड़ी अच्छी तरह से पेश कर पाया, बिकॉज आई टुक इट एज ए चैलेंज एंड ही अप्रिशिएटेड. ओके, दैट्स ग्रेट, रियली नाइस सर. ओके, और कोई शेयर करना चाहेंगे?
I would just like to say, yes, sir. For my graduation in mathematics honors in Hansraj College, we were not able to buy the books which were required for the graduation. I, from my own house up to that library, I used to go there, study the things, make all the notes there, and then, I did my complete syllabus, and I was able to obtain the second class, in the second division during that time, which was most difficult, about 55% marks. Yes, sir. And after my graduation, then I became eligible to get into the Indian Army there. So I got there after the Army. Wow. Thank you so much, sir. Thank you, sir, for sharing. Moving forward, जैसे कि when it comes to challenges, जब challenges की बात आती है या फिर life में difficult situations की बात आ जाती है, so ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें help करते हैं कि हम कैसे difficult situation से लड़के बाहर आ जाए. उनमें से एक component है resilience. तो मान लीजिए हम जब ये resilience word सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या thoughts आते हैं कि what do we mean by resilience? आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो. ओके, तो मैं बताती हूँ. रेजिलियंस एक हमारी ह्यूमन कैपेसिटी है, हमारी एक पावर कह सकते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं जब हम कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हमें कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाता है तो हम उस सिचुएशन से कैसे बाउंस बैक करते हैं या फिर उभर के आते हैं वापस, तो उसको हम रेजिलियंस कहते हैं. और ये जो रेजिलियंस वाली हमारी कैपेसिटी है वो हर सिचुएशन के हिसाब से हर इंडिविजुअल की सबकी अलग अलग होती है रेजिलियंस की पावर. और जब हम रेजिलियंट होके डिफिकल्ट सिचुएशन से लड़के बाहर आ जाते हैं, ऐसे सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं, सो दैट इज समथिंग वी लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस. जैसे आप लोगों ने अचीवमेंट्स, चैलेंजेस दोनों चीजें हमारे साथ शेयर किया, ये दोनों चीजें हमें हेल्प करता है फॉर आवर ग्रोथ, फॉर आवर इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफ. सो हमारे पास एक छोटी सी स्केल है, हम इसको एक एक्टिविटी के तौर पे दे सकते हैं कि इस एक्टिविटी में हम आपके साथ जैसे आप लोगों के पास पेपर पेंसिल होगा, ये कुछ क्वेश्चंस है जो हम चाहते हैं कि आप लोग इनके बारे में सोचिए थोड़ा सा और हमें पेपर में नोट करिए. यहाँ पे 12 क्वेश्चंस है और सारी क्वेश्चंस मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी और उसके लिए हमारे लिकट स्केल में आपको स्कोर करना है. फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि ये वाली क्वेश्चन में 1 है, दैट विल मीन कि आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो इस लाइन पे या इस क्वेश्चन पे. और अगर आप बहुत ज्यादा अग्री करते हो इस लाइन के लिए तो आप स्ट्रांगली अग्री कर सकते हो उसके लिए. और अगर 5 पॉइंट्स है तो बीच में अगर मान लीजिए 2 आती है तो डिसएग्री की तरफ जाएगा, और अगर 4 आ रहा है तो अग्री की तरफ जाएगा, और अगर बीच का आपको लग रहा है तो आप बीच में 3 में स्कोर कर सकते हो. तो मैं एक एक करके क्वेश्चन बताऊंगी और उसी के हिसाब से आप जस्ट 1 और 5 के बीच में स्कोर करना है आपको. आर वी अप फॉर दिस? हम स्टार्ट कर सकते हैं ये? स्ट्रांगली एग्री के लिए 1 बोला. यस, सॉरी, स्ट्रांगली एग्री के लिए 1 बोला आपने? हाँ जी, 5 बोला था. स्ट्रांगली अग्री के लिए 5 बोलना है और स्ट्रांगली डिसएग्री के लिए 1 बोलना है. स्ट्रांगली डिसएग्री, ओके, राइट, थैंक यू. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ डिफिकल्ट स्पॉट आई टर्न एट वंस टू व्हाट कैन बी डन टू पुट थिंग्स राइट. सो कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन मान लीजिए आ जाता है तो मैं कोशिश कर सकती हूँ कि चीजें कैसे बेहतर कर सकूं मैं. सो अगर आप इसको कंप्लीटली डिसएग्री करते हैं तो आप 1 करेंगे, और अग्री करते हैं स्ट्रांगली अग्री तो 5 कर सकते हैं, वरना बीच में आप रख सकते हो. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है, आई इन्फ्लुएंस वेयर आई कैन रादर देन वरिंग अबाउट व्हाट आई कांट इन्फ्लुएंस. तो मैं जो चीजों पे मेरी कंट्रोल है या फिर मेरी ध्यान लग सकती है, उन सारी चीजों को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में टेंशन नहीं लेता हूँ. ठीक है.
थर्ड है आई डोंट टेक क्रिटिसिज्म पर्सनली। तो कोई भी क्रिटिसिज्म, अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज कर दिया, कुछ बुरा बोल दे, तो वो मैं पर्सनली नहीं लेते हूँ। अगर आप डिसएग्री करते हो इस लाइन को कि मैं लेती हूँ पर्सनली, तो आपको करना है अग्री में। Fourth question is I generally manage to keep things in perspective. So जो भी situations आ जाती है, मैं सारी चीजों को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, मैनेज कर सकती हूँ और चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ। Fifth question is I am calm in a crisis. कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाता है या फिर कोई भी क्राइसिस वाला सिचुएशन आ जाता है, मैं बहुत शांत होकर उसको डील करती हूँ। नेक्स्ट इज आई एम गुड एट फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम। तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो मैं उसका हल ढूंढ सकती हूँ आराम से। नेक्स्ट इज आई वुडंट डिस्क्राइब माई सेल्फ एज एन एंशियस पर्सन। मैं खुद को घबराने वाला इंसान नहीं समझती हूँ, एंशियस पर्सन खुद को नहीं समझती हूँ। अगर आप समझते हो तो इसको डिसएग्री करना है, 1 की तरफ लेकर जाना है। नेक्स्ट इज आई डोंट टेंड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। किसी के साथ अगर कोई बहस वगैरह हो गया तो मैं ऐसी सिचुएशन को अवॉइड नहीं करता हूं। इसको ये दबाइए। Next is I try to control events rather than being a victim of circumstances. मैं situation को या event को control करने की कोशिश करता हूँ, then हाथ उठा देना कि मुझसे नहीं हो पाएगा। Next is I trust my intuition. मैं अपनी intuition पे भरोसा करते हूँ। Next is I manage my stress levels well. मुझे अगर स्ट्रेस हो जाता है तो मैं उसको अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। लास्ट इज आई फील कॉन्फिडेंट एंड सिक्योर इन माई पोजिशन। आज मैं जहां हूं उस चीज को लेके मुझे खुद पे भरोसा है और मैं सिक्योर फील करता हूँ। सब लोगों ने कर लिया? कर लिया तो एक बार ही थम्स अप दे देंगे। हाँ जी, मैं बताऊं? मैं अभी आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो जैसे कि मान लीजिए किसी का 1 से 12 तक ऐसा आ रहा होगा, 2, 3, 4, 5, 1, 6 ऐसे करके, तो सब स्कोर्स को आपको प्लस करना है, एडिशन करना है सारी स्कोर्स को सीधा। हाँ ठीक है, 1 से 12 तक। हाँ ठीक है। स्कोर करके जो टोटल आता है वो अपने पास रखिए। टोटल बताना है आपको? आप रखिए, अभी मैं पूछती हूँ। मैक्सिमम 60 हो सकता है। डन? या ओके। सो बेसिकली हाँ जी, सो ये जो क्वेश्चनर था या फिर ये जो एक्टिविटी था, इससे हमें ये पता चलता है कि हम कितना रेजिलिएंट है। तो अगर मान लीजिए आपकी जो भी स्कोर है, कोई शेयर करना चाहते हैं? 48 ओके। 48 means that you have a strong level of resilience. तो 49 ओके। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग या एक्सेप्शनल लेवल ऑफ रेजिलियंस में फॉल करते हो, जिसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में कभी भी कोई बुरा सिचुएशन आ जाए, कोई भी डिफरेंट सर्कमस्टेंस आ जाए, तो आप उन सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से डील कर सकते हो और अच्छे से उभर के आ सकते हो। My score is 53. 53, wow. Sir, that's really great. That's really great. That means that you have an exceptional level of resilience. And most of the times क्या होता है कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन आता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से बाउंस बैक कर सकते हो। वैसे सिचुएशन जैसे होता है ना कि बॉल हो गया, मान लो उनको नीचे आप फेंकोगे तो वो बाउंस होके वापस आता है ना, उसी के थ्रू हम रेजिलियंस को समझ सकते हैं।
अगर 0 to 37 है मतलब रेजिलियंस की स्किल धीरे धीरे वो सीख रहे हैं। अगर एस्टैब्लिश्ड है इसका मतलब ये है कि वो उनके स्किल्स आ गए हैं, वो यूज कर सकते हैं अपने स्किल्स को। स्ट्रॉन्ग और एक्सेप्शनल हो तो उनकी अच्छी वाली लेवल ऑफ रेजिलियंस हो गया है और वो कोई भी प्रॉब्लम को बहुत बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। Mine is 49. That's really great. That's exceptional level of resilience. 49. Beautiful. Very nice. Okay. Moving forward, जैसे कि आप लोगों ने शेयर किया कि आप एक चीज बताना, आपने इस पे स्कोरिंग में लिखा हुआ है 60 to 90, तो क्वेश्चन तो 12 है, 5 जो है आपके मैक्सिमम है, 5 बरा 60, तो 90 कहाँ से आ गया? नहीं, 40 to 60. अच्छा, I read it as 90. Okay sir. 49 to 60. कोई ना सर, ठीक है सर। अगर आप लोग चाहे लेटर ऑन वी कैन शेयर द क्वेश्चनर विद यू। आप लोग ये अच्छे से फिर से क्वेश्चंस पढ़ के कर सकते हैं अपने आप। हाँ, शेयर कर देना। सर दोबारा दिखाइए। इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, आप फॉरवर्ड करोगे हमको? मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी पक्का। फॉरवर्ड कर दो। हाँ, स्क्रीनशॉट की बजाय फॉरवर्ड कर देना। फॉरवर्ड। ठीक है सर। मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि आप लोगों ने अपनी एक्सपीरियंसेस से बताया कि अचीवमेंट्स और चैलेंजेस आते रहेंगे, लाइफ ऐसे ही है। आप लोगों ने गाना भी गाया था, जिंदगी ना मिले दोबारा। तो ऐसे ही अगर हम देखते जाए तो ऐसे कुछ चीजें होती है जो हमें हेल्प करता है कि हाउ कैन वी बी मोर रेजिलिएंट। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हमें रेजिलियंस सीखना है, अब रेजिलियंस तो हमारा एक्सेप्शनल भी हो सकता है, डेवलपिंग भी हो सकता है, एस्टैब्लिश्ड भी हो सकता है, पर ये एक ऐसी स्किल है जो हम हमेशा सीख सकते हैं और हमेशा इसको बेहतर कर सकते हैं। तो इसके अभी हम बस 4 तरीके डिस्कस करेंगे और आप बताना कि आपका कौन सा सबसे ज्यादा तरीका है। एक तरीका होता है सपोर्ट लेना। कहते हैं ना कि सपोर्ट सिस्टम जितना अच्छा हो कि हमें जो पेन आएगा, जो सफरिंग आएगा, जो हैप्पीनेस आएगी, वो तो हमें करना ही है, हमारा है वो। पर जब हमारे पास लोग होते हैं वो सब शेयर करने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए, तो सब चीजें बेहतर हो जाती हैं। तो जैसे ही आपका कोई चैलेंज आ रहा है तो आप अगर अपने साइकोलॉजिस्ट को फोन करके उनसे बात कर पाए, या आपने किसी दोस्त को फोन करके उनको बोले कि आज शाम में मिलकर और हम इस बारे में बात करें, तो ये होता है अपना सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट लेकर एक चीज से उभर के आना। दूसरी टेक्निक होती है स्ट्रैटेजीज। अपने दिमाग में स्ट्रैटेजीज है कि जैसे मुझे पता है कि शाम में 4-5 बजे के बाद ना मेरा मूड थोड़ा अच्छा नहीं होने लगता, तो मैं एक चीज करना शुरू करूंगा कि शाम में जो चीज मुझे पसंद है ना, जैसे अपने डॉगी को बाहर वॉक पे लेके जाना, या फिर मुझे खेल, या फिर मुझे गाना बहुत पसंद है, तो शाम के टाइम पे मैं गाना गाया करूंगा ताकि मेरा मूड अच्छा रहे। या फिर मेडिटेशन करना, मतलब जब भी मुझे लो महसूस होएगा तब मैं मेडिटेशन कर लूं या फिर कोई मूवी देख लूं। तो ये सब चीजें हमारी स्ट्रैटेजीज हो जाती हैं जिस तरीके से हम रेजिलिएंट हो सकते हैं। स्ट्रैटेजीज कौन कौन यूज करता है यहाँ पे? एक बारी बस अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। ओके। और सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन सीख करता है? सपोर्ट सिस्टम किसने अच्छा बनाया हुआ है अपना? ये तो सबसे जरूरी चीज है। किसी ने भी नहीं, कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा। मैंने देखा नहीं। मैंने बनाया। आपने कहीं सोशल मीडिया नहीं लिया हुआ? सोशल मीडिया, दी फेसबुक्स, दी other YouTube channel, so much media is available right now. So that is also support. Definitely, and other requirements. That can be a part of your strategy, sir. Like but when there are so many personal things available right now. You don't have to take any personal support. So much impersonal is there. Yes, sir. So social media could work for a lot of people, while for other having a physical support system might work. It could because be a generally strategy. Everybody now says that people are dependent on their laptops, their computers, TVs, and telephones, cell phones. Yes, sir. The life of the person is now revolved around this only.
If you're not, ये तो कुछ ही लोगों का है ना जिनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान है ज्यादा. So much is digital right now. जिनको नहीं है वो थोड़ी ये सब कुछ जानते हैं. So much is available on the media that you are not mentioned anywhere. Yes, sir. Social media could also make you feel better at times, but at times it might also make you feel worse. Yes. So it really depends on you, how you want. Mostly it is the reverse. So अभी हम third technique देखते हैं. Basically, our friends and family members, our Yes. friends are support system. Yes, yes, sir. That's right. अच्छा, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं who use sagacity, मतलब अपनी wisdom use करके. जैसे कि हम में से कितने सारे लोग होंगे ना जो ऐसे बोलते होंगे कि जो हो रहा है सब हैंडल हो जाएगा, भगवान जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं. तो जब हम अपने आप को इस तरीके से बोलते हैं ना, दिस टू शैल पास, या फिर आई कांट चेंज द सिचुएशन बट आई कैन चेंज द वे आई थिंक अबाउट द सिचुएशन, सो लेट मी गो फॉर थेरेपी. तो जब हम this is with me. Oh, that's great, sir. That's great. So this is also. Yes. Isn't this part of the strategy only? Use your wisdom. Yes, it could be one of the strategies, but it is also a very dominating thing that Dominating. can be counted separately as well. Like some people only rely on this. Only. Even solution seeking could be a part of strategy, but these are 4 major strategies that we generally use. Thank you. Yes, ma'am. So the last one is solution seeking, where there are some people जो सीधा ये सोचेंगे कि अच्छा प्रॉब्लम तो आ गई, अब मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ. मेरे पास 10 चीजें हैं दिन में करने के लिए और मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ, तो वो सीधा टाइम मैनेजमेंट के लिए जाएंगे. वो ना किसी को फोन करेंगे ना कुछ और सोचेंगे, सीधा सॉल्यूशन सीकिंग करेंगे. तो इन 4 स्ट्रैटेजीज को, इन 4 चीजों को मिक्स करके हम एक बहुत अच्छा सा रेजिलियंस प्लान बना सकते हैं और इस तरीके से हम अपनी स्किल को नर्चर कर सकते हैं रेजिलियंस की. और यहाँ पर तो ऑलमोस्ट सबकी बहुत ही अच्छी रेजिलियंस है जो हमने स्कोर में देखा, तो दैट इज वेरी ग्रेट. तो रेजिलियंस के बारे में हमने इतना सीखा कि होता क्या है, किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से इसको नर्चर कर सकते हैं. अब हम एक और एस्पेक्ट पे आएंगे जो कि है सेल्फ केयर. अब सेल्फ केयर इतना सब बोलते हैं कि पैम्पर करो खुद को, मसाज के लिए जाओ, ये करो वो करो, पर सेल्फ केयर सिर्फ ये नहीं है. सेल्फ केयर में अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब चीज का अपना ध्यान रखना इज व्हाट सेल्फ केयर इज अबाउट. और एक बहुत अच्छी चीज बताऊं, जो लोग सबसे अच्छे से सेल्फ केयर में इंडल्ज करते हैं ना, वो रेजिलिएंट माइंड भी बना पाते हैं. जब अपना मेंटल इमोशनल हेल्थ की बहुत परवाह करोगे ना, तो आप खुद ब खुद रेजिलिएंट हो जाओगे. तो जिन लोगों का डेवलपिंग वाला आया ना, वो इस चीज को बहुत अच्छे से सुनेंगे. ठीक है, अच्छा. तो अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोग अपनी केयर कैसे करते हैं. जैसे होता है ना, हम अपने आसपास के लोगों की इतनी केयर करते हैं, सबको इतना प्यार देते हैं, सबके साथ इतना लाड दुलार करते हैं, पर अपने लिए क्या करते हैं? मैडम. हाँ जी. हमारा ना टोटल सरेंडर है भगवान को. उनका नाम है कृष्णा. तो whenever there is a problem, I take sport of spiritualism. Oh, okay, that's great. So you have faith that keeps you going. Yeah, total faith, total. Yes, got it. और अपनी परवाह के लिए क्या करते हैं? अपनी परवाह करने के लिए जब बुरा फील हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो कैसे अपने आप को अच्छा महसूस करवाते हैं? जैसे मैंने बताया कि आई एम आल्सो फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स, तो मैं अपना म्यूजिक सिस्टम लगा के बैठ जाता हूँ और 5-6 गाने खुद गाता हूँ और अपना टेंशन रिलीव करता हूँ. Wow, that's a great thing, sir. Thank you so much for sharing. Listen to music. Listening to music. I do too. So I know it works really well. And just take a few steps on the rhythm of the music. Just I'm sure Pranami can relate to that. Totally. Shake your body a little and forget the worries. Yes, that does happen. And I am an independent person. I can do everything right from the scratch till the end. That's great, sir. That's really great. I don't have to depend on anybody. I can do. I can do. Go to the hospital, drive myself. Wow. I can cook myself, and I can enjoy the life. Going anywhere. If I want to go to the club, I'll go to the club. Wow, and sir. I try to take things very lightly and enjoy it.
That's great, sir. Really nice to hear that. आप सबकी स्ट्रैटेजी सुनकर बहुत अच्छा लगा. मैं भी कुछ यही चीजें करती हूँ. मुझे गाना बहुत पसंद है और मुझे ट्रैवल करना पसंद है, तो मैं ये सब चीजें करती हूँ अपनी केयर करने के लिए. तो अभी हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं जो हम सब कर सकते हैं और जो सबके लिए काम आती है, जिनमें से एक है स्टे एक्टिव. मुझे पता है आप सब लोग तो देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्टिव रहते हैं और अपनी बहुत केयर करते हैं. तो आपकी जो भी हॉबी है, चाहे वो डांस करना हो गया, चाहे वो गाना हो गया, कुकिंग हो गई, जिस भी चीज में आपको बहुत अच्छा लगता है, जरूर उसको दिन में एक बार किया करें. ठीक है. एंड एक्टिविटीज दैट कीप योर माइंड एंगेज्ड एंड वर्किंग. कहते हैं ना, बिजी रहना, अपने माइंड को बहुत सारी एक्सरसाइज देना. बॉडी को तो कितने सारे लोग एक्सरसाइज देते हैं ना, वर्कआउट करना सब लोग कहते हैं, पर पहले वाले दिनों में कितना होता था ना, न्यूज़पेपर खोल के सुडोको पजल सॉल्व करना या फिर माइंड गेम्स खेलना, जिससे हमारे माइंड को भी कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज मिले. तो हमें ये चीज अपनी केयर करने के लिए जरूर करनी है अपने रूटीन. टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज एंड एंगेजिंग इन फिजिकल एक्टिविटी. अब ऐसा बहुत बार होता होगा कि कहीं पर दर्द है, मेरे साथ भी होता है कि अगर लिगामेंट टियर हो गया तो फिर नहीं हो पा रहा अच्छे से, पर कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे सुबह उठ के योगा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, ये छोटी छोटी चीजें, ताकि थोड़ा सा वर्कआउट हो जाए. क्योंकि क्या होता है ना, जब हम फिजिकल वर्कआउट होता है ना, तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है. तो चाहे वॉक करके, चाहे थोड़ा सा स्ट्रेच करके, अगर हम ये चीजें अपने रूटीन में रोज लेकर आए, तो हमारा शरीर और हमारा मन दोनों बहुत तंदुरुस्त फील करेंगे. और ट्रेडिंग टाइम फॉर गुड कॉज. कितना हमें बचपन से सिखाया जाता है ना कि सोसाइटी के लिए अच्छा करना, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने तो हमारे नेशन को सर्व भी करा है किसी ना किसी तरीके से. तो वो वाली जो फीलिंग होती है ना, बच्चों को पढ़ाना या फिर चैरिटी करना या फिर कुछ भी ऐसा करना, दैट्स बियॉन्ड यू, जिसमें पर्पस फील हो. जैसे अभी सर ने बताया कि उनको इतना फेथ है कि वो सब कुछ भगवान के उस पे कर देते हैं, कि जब भी कोई सिचुएशन आई ये किया. तो अपने से ऊपर एक चीज फाइंड करना और उसके टुवर्ड्स अपने आप को ड्राइव करना, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर हम अपने रूटीन में लेकर आए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. आई एम श्योर इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें करते होंगे सब लोग अपने रूटीन में डाल के, पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिन में एक चीज ऐसी हो जिसको सोचकर हमें लगे कि कल मुझे ये करना है, तो कल मैं उठूंगा ये सब करूँ. तो दिन में एक प्लेजरेबल एक्टिविटी, जिससे कि हमें महसूस हो, हम अपने आप को अच्छा महसूस करवा पाए, अपने आप को स्पेशल महसूस करवा पाए. क्योंकि कितनी बार एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमारे दोस्त या फिर हमारे फैमिली वाले हमारे लिए ऐसा करेंगे, तो क्यों ना अपने लिए वो चीज की जाए. तो इस तरीके से अगर हम अपना ख्याल रखेंगे तो हम रेजिलिएंट भी हो सकते हैं. पर अभी हम एक छोटी सी प्रणामी सबके साथ एक एक्टिविटी करेगी, जिससे कि सब लोग अपने रूटीन में रोज कर सकते हैं, ताकि वो अच्छा महसूस करें. ओवर टू यू प्रणामी. थैंक यू कशिका. सो अभी के लिए आप लोग अपना पेपर पेन जो हाथ में था वो लोग आप साइड पे रख सकते हो और आराम से बैठ के रिलैक्स हो जाइए. एकदम पेपर पेन साथ पे रख दीजिए, साइड पे आराम से बैठ जाइए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, एंड देन slowly try to close your eyes. सब लोग अपनी आंखें बंद कर दीजिए. मैं अभी भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों की आंखें खुले हैं. धीरे से आंखें बंद कर दीजिए. तीन लंबी गहरी सांसें भरे. अपने ध्यान अपनी सांसों पर रखें. आपकी जो भी थॉट्स और फीलिंग्स आ रहे हैं उनको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए. वो जो थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, उनको बस रहने दीजिए. अब हम धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी को सर से लेकर पांव तक रिलैक्स करेंगे.
और आपकी जो ब्रीदिंग है उनको नॉर्मल पेस में लेते रहिए। इस रिलैक्सेशन एक्सरसाइज में हम अपने मसल्स को टाइट करेंगे और उसके बाद हल्के से उन्हें रिलैक्स करेंगे। अपने आप पर ध्यान दीजिए कि आपको कैसा फील हो रहा है अभी। अपनी फोरहेड के मसल्स को टाइट कीजिए और धीरे से उसे रिलैक्स करिए। अपनी माउथ और अपनी चिक्स के टेंस करिए और धीरे से उसे 1 से 5 काउंट करके रिलैक्स कीजिए। सर को पीछे की ओर खींचे। उसके बाद वापस ले आइए। आंखें आपकी बंद होनी चाहिए। अपने हथेलियों को जोर से बंद कीजिए। और धीरे से उसे एक एक करके खोल लीजिए। अपनी आर्म्स को, अपनी हाथों को बाहर की ओर स्ट्रेच कीजिए। जितना जोर से हो सके उतना जोर से स्ट्रेच कीजिए, टाइट कीजिए मसल्स को। अभी धीरे से वापस लाके अपने पैरों पे रख दीजिए। इसके बाद हम अपनी चेस्ट और पेट को टाइट करेंगे। पेट की जो मसल्स है उनको हम टाइट करेंगे। उसके बाद धीरे से उसे छोड़ देंगे, रिलैक्स कर देंगे। अभी हमें अपनी थाइस और अपनी काफ्स के मसल्स को टाइट करनी है। टाइट कीजिए और हल्के से उसे रिलैक्स करिए। नेक्स्ट, अपने टोस को स्ट्रेच करिए। अपने पैरों की उंगलियों को स्ट्रेच कीजिए और धीरे से उसे रिलैक्स करिए। अभी अपने दोनों हाथों को आपस में रब करिए और अपनी आंखों पे उसे महसूस करिए। धीरे से 3 गहरी सांस लीजिए, लंबी सी सांस लीजिए और धीरे से अपना आंखें खोलिए। ठीक है, हम वापस वेबिनार में आ गए। अभी हाउ डिड यू फील? अभी कैसा लग रहा है आप लोगों को? कैसा महसूस हो रहा है? रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग, वेरी रिलैक्सिंग, वेरी पीसफुल नाउ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, रिलैक्सिंग है। That's really nice, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much. हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको रिलैक्स्ड भी महसूस हुआ और आप सबने हमारे साथ इतनी सारी एक्टिविटीज भी करी और इतना पार्टिसिपेट करके किया।
और टाइम की वजह से चाहे हमारा बहुत मन है अभी भी आप लोगों से बहुत सारी बातें करने का, पर टाइम की वजह से हम और बातें नहीं कर पाएंगे और बहुत सारे टॉपिक्स नहीं कर पाएंगे, पर हम आपको पूछना जरूर चाहेंगे कि आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। आप अपने हैंड से या अपने एक्सप्रेशन से, ये सिर्फ हैंड्स और एक्सप्रेशन से बताना। नहीं, लाइट लग रहा है बॉडी, लाइट लग रही है, ओके, थम्स अप, ओके। जिसको बहुत अच्छा लग रहा है ना वो बहुत अच्छे से हंस भी सकता है। वेरी रिलैक्सिंग, वेरी रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग, दैट्स ग्रेट, ओके। तो अभी ना हम थोड़ा सा रिलैक्सिंग एंड एंजॉयड आल्सो, एंजॉयड, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, तो अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको भी इतना अच्छा लगा, तो हम एक छोटी सी चीज करते हैं। रिलैक्स तो हम बहुत हो गए, पर अभी ना हम सब एक बारी बस खड़े हो जाएंगे, ओके? सब खड़े हो गए, वेरी गुड। तो अब हम क्या करेंगे ना, जो मैं करूंगी ना उसी तरीके से करेंगे सब। ओ, सब बोलेंगे ओ, यस, ओ, यस। आप लोग बताएंगे क्या मूवमेंट करना है, जैसा फील करना है वैसा करेंगे। प्रणामी, आप बताओ क्या करें? वो स्क्रीन नहीं दिख रही। और क्या करेंगे? Pranami, I'll request you to remove your share screen so that then they can see. Yeah, sure. और कोई कुछ करना चाहेगा? कोई सिग्नेचर मूव किसी का जो सब करेंगे? कोई बॉलीवुड एक्ट? थैंक यू सो मच। Very nice. Very well done. Thank you, sir. Thank you so much. सलाम आपको। शुक्रिया sir. Thank you, you so and much. Kashika. Thank you so Thank much you for so such much. a Bless you. wonderful show. Thank you. Thank you. Thank you so much. You can make out by everyone's reactions how much they have enjoyed this session with all with you both as such, and of course Kaleidoscope ke saath we have been having a lot of sessions and we've enjoyed each and every one of them, and today with you both also, and I hope that we have more and more sessions with Kaleidoscope, and we definitely look forward to it. And I think सोने पे सुहागा ये था, with everything that you were doing, आपने थोड़ी सी meditation करा दी, which really calms down everyone and gets everyone into a peaceful kind of a stance. So जैसे मैंने कहा, so that was very, very unexpected, because other things we keep happening and all the activities that we keep having with all of you. So thank you so much for this extremely wonderful session, and a lot of things that you talked about were very, very enlightening. And of course, we all agree to the fact that zindagi na milegi dobara. So we need to live life to the fullest and do whatever we need to do whatever which makes us happy, and leave whatever which makes us sad. I know it's a little difficult thing to do, but yet we should at least start getting into the mode of leaving the bad things and just concentrating on the happier ones. And whatever you all want to do, there is no age, no bar, and हमारे यहाँ के जितने भी elders हैं, I think they all will agree with that, that they are as young as they can be. So please achieve whatever you want to do. The sky is the limit, and just live the way you all want to. क्योंकि जैसा हमेशा कहते हैं, जिंदगी लंबी होनी चाहिए, बड़ी नहीं. So with that, thank you once again. Thank you so much, Ritu. आपने बहुत beautifully पूरी webinar को summarize किया. Thank you for this opportunity, and really it was really fun interacting with everyone. बहुत सीखे भी हम सर और मैम से, बहुत अच्छा लगा. Right. So with that, we come to the end of today's session. Thank you. So thank you so much, everyone. And now
Yes, I can see a lot of elders giving you a thumbs up because they've really had a great time. So thank you once again. And now, of course, we end with this session, and we will see you all tomorrow morning at 8 o'clock for our physiotherapy session. 12 o'clock, we have our practice session for the Nature Club. And 5 p.m., we have the dietitian show. So please do join in. And we do not have a mirror show that we usually have at 6:30. For tomorrow, we are not having it. We will again get back into our schedule on Saturday. So till then, keep smiling. रितु, हमारे डॉक्टर एक होते थे, आजकल कोई डॉक्टर कोई नहीं आता प्रोग्राम में. In fact, Colonel Puri, let me, Pranami and Kashika, if you want to leave, you both can please, leave the meeting. I'll just have a 5-minute talk with them, and thank you once again. Thank you so much. Thank you. Bye. Hanji, Colonel Puri, definitely we had Dr. Baba, and also we had a lot of feedback from the elders wherein you all said that बहुत सारे doctor show हो रहे हैं, बहुत सारा dietitian show हो रहे हैं. So we've cut down on that because this was a feedback given by all of you. So we've tried to change our sessions according to that, and since that is why we are only having one session, that is by Dr. Gerewal as of now. And only 2 dietitian, because पहले 4 dietitian shows होते थे and ऐसे ही 4 doctor shows भी होते थे, but because of what you all wanted, we definitely changed it. So that is why one show. अगर आपको और चाहिए, we can always include more doctor shows into it. कई medical issues होते हैं, when Dr. Gerewal does, he does to one particular ailment. My point is that if you have any medical issues there, some question answers type thing can be taken place. Like what used to be done. We can do that, Kanpuri. Like I said, it was like the change was only done on your request and all that. We can again get back to having more doctor shows, so we can add for the September has already been planned, but still we will try to get in more. But otherwise, October definitely we will have more sessions for the doctors. हमने तो पहले ही मोहा का डॉक्टर जो अपना फैमिली डॉक्टर बना लिया था, फैमिली फिजिशियन बना लिया था. अभी डॉक्टर्स अभी भी हैं हमारे पास, ऐसी बात नहीं है. अभी कौन है हमारा? अभी तो we have हमारे साथ. बस any problem will come back to you only. नहीं, please do reach out. We have many panel doctors with us and all that, and आपको जब भी कभी problem हो, so obviously you can reach out to your relationship managers, and they will, by the proper process, they will reach out to the doctor, and the appointment and all will be fixed. Not immediately. So ऐसा नहीं. Take a lot of time. Immediately, अगर कोई emergency है, तो immediately भी है, but otherwise जो आप time देंगे, उस हिसाब से ही होगा. अगर आप कहते हैं कल चाहिए, शाम को चाहिए, accordingly it will be planned. ऐसा नहीं है कि there's a drop in anything. We will still be doing it depending आपको कितनी जल्दी चाहिए. मतलब अगर sudden emergency है, तो we will definitely get the doctor immediately on call. So, and thank you.